Hello and welcome to Happy Studying. And let's begin with the administration under various dynasties. तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत कब आई थी? It came in around 1206. ठीक है, तो it started with Mamluk dynasty. Okay, and what you need to know here is that Mamluk dynasty is also known as slave dynasty. Okay, इनको किसने आके establish किया? कुतुबुद्दीन ऐबक थे. ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए, एंड देन there was Razia Sultan. She was the first female ruler in India, or in fact in the world. So that is there. Then there was Khilji dynasty. Okay, so Khilji dynasty, Alauddin Khilji, you all know. He was not the founder though. Then there was there was Jalaluddin Khilji. Okay, so like that. Then Tughlaq dynasty came. There was Ghiyasuddin Tughlaq, and then there was Muhammad bin Tughlaq. There was Firoz Tughlaq. Okay, Sayyid dynasty at Khizr. It's also known as Khizr dynasty. Or Khizr Sayyid was one of the rulers. Then Lodi dynasty came, and Lodi dynasty, you all are aware with, I think, Ibrahim Lodi and Sikandar Lodi. Okay, but they were not the founders. Behlol Lodi was the founder. Okay, and rest you can read about them in a bit of detail, but most questions are from the administrative part. Okay, like the word associations and all. So we'll be doing that in this video. Now, administration under the Sultanate. So basically, it was influenced by the Iranian as well as the Indian traditions. ठीक है, Iranian system में कुछ सीख के आए होंगे वो, plus Indian traditions. ईरान क्या था? ईरान was Persia. ठीक है, पर्शिया से आए थे ये लोग. So Iran and Persia. Okay. Then the Turks were able to evolve a number of new institutions and concepts which provided a basis for centralization of power and authority of a type which had not existed in India earlier. मतलब इनका फोकस किस पे था? डिसेंट्रलाइजेशन की सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? कि भाई सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हो और क्या. ठीक है, so centralization of power. Now in theory, Muslim state was a theocracy. Now if you see, it was a theocracy. What's a theocracy? कि जो head of state होता है is also the religious head. Okay, and they derive their position authority from God. सीधा भगवान ने आके बोले हाँ ये बनेगा. ठीक है, और इन सब ने एक्चुअली जो कैलिफ होता था ना, कैलिफ को सुप्रीम हेड मानते थे ऑफ द होल मुस्लिम वर्ल्ड. तो इन्होंने सबने अपने आप को बोला कि हम कैलिफ के नीचे आते हैं. और what names did they give? So they assumed some names. उन्होंने अपने आप को ऐसे बोलना स्टार्ट किया, नासिर अमीर उल मोमिन एंड यामिन उल खलीफा, जिसका मतलब ये था कि we are deputies of the caliph. ठीक है, but there were two people who did not believe so, and that was Alauddin Khilji and Mubarak Khilji. They were exceptions to the authority. मतलब इन्होंने caliph को नहीं माना, इन्होंने बोला हम ही हमें. किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने और मुबारक खिलजी ने. ठीक है, इन्होंने बोला हमें. तो ये दोनों एक्सेप्शंस रहे, बाकी सब ने तो कैलिफ की अथॉरिटी से ही अपनी अथॉरिटी मानी है. लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं था. Okay, they were very much independent. So Caliph, the Sultanate was always an independent state for all practical purpose. कभी ऐसा कुछ Caliph से पूछ पाछ के नहीं कर रहे थे, तो बस ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया, एक इज्जत दे दी. ठीक है. Now central government, तो basically Sultan, he was क्या? He was the legal head of the state. He was the chief executive, and he was also the highest court of appeal. मतलब तीनों powers, executive, legislative और judicial, सब किसके हाथ में थी? सुल्तान के हाथ में थी. ठीक है, अब सुल्तान जो थे ना, ठीक है, उनके हाथ में सारी पावर्स थी, बट डिस्कशन वगैरह करनी पड़ती होगी. तो डिस्कशन करते थे किनके साथ? ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द स्टेट इन अ काउंसिल. तो क्या था? मजलिस ए खलवत एंड मजलिस ए आम, इन विच द मोस्ट ट्रस्टेड एंड हाईएस्ट ऑफिसर्स वर अलाउड टू स्टे. ठीक है, तो काउंसिल का नाम क्या था? मजलिस ए खलवत या मजलिस ए आम. ठीक है, याद रहेगा, मजलिस ए खलवात. याद करो ना, बार बार रिपीट इसलिए करिए दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस. मजलिस ए खलवात या मजलिस ए आम क्या है? काउंसिल है जहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जहाँ पे सुल्तान बात करेंगे जो उनको डाउट्स होंगे, या वैसे ही डिस्कशंस करेंगे. ठीक है, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे. ना ही वॉज द चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑल्सो. चलो सब चीज़ में यही हीरो हैं. एंड मेड अपॉइंटमेंट टू ऑल हायर सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट. द
Sultan administered all the departments in every branch of the state. Malik Naib or deputy sultan was appointed only when the ruler was weak or minor. तो मान लो अब ये जो रूलर हैं ये थोड़े वीक हैं, ठीक है, या इनकी एज लेस देन 18 है, ये माइनर है, तो तब इनको लगेगा यार कोई और भी होना चाहिए, सिर्फ सुल्तान से काम नहीं चलेगा, तो ये एक डेप्यूटी सुल्तान को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो डेप्यूटी सुल्तान का क्या नाम है, या पोस्ट का नाम क्या है डेप्यूटी सुल्तान की? नाइब। नाइब मीन्स डेप्यूटी, और नाइब किसका? मालिक का। वो मालिक मानते हैं ना उसको, तो नाइब मालिक या मालिक नाइब जो भी बोलना है, ठीक है, मालिक नाइब है तो बस, और डेप्यूटी सुल्तान, ठीक है ना। द सुल्तान रूल थ्रू द मिनिस्टर्स एंड अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स। हर जगह यही होता है, कोई नई बात नहीं है इसमें, क्या क्वेश्चन बनेगा। अब हाँ, 4 पिलर्स हैं, ठीक है। द 4 पिलर्स ऑफ द स्टेट वर, ये याद रखना, दीवाने विजारत, विजारत अभी चलो आएगा, दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा एंड दीवाने रिसालत, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में, फिर देखते हैं क्या निकलता है। दीवाने वजारत क्या है? सी, दीवाने वजारत इट वाज द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ठीक है, हेडेड बाय द वजीर। वजीर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और दीवाने तो दीवाने वजारत वाज द इट वाज द हेड ऑफ द स्टेट, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। उनके साथ एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था, हु इज़ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नोन एज, जैसे वहाँ पे डेप्यूटी सुल्तान था, कौन था? नाइब मालिक, यहाँ पे नाइब वजीर हो गया, ठीक है। तो यहाँ नाइब वजीर, ही एक्टेड एज अ डेप्यूटी टू द वजीर। द वजीर वाज असिस्टेड। अब वजीर का यहाँ पे काम क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर एक तरह से, तो अकाउंट देखेगा, ऑडिट करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। अब सब कुछ खुद तो कर नहीं पाएगा, तो ही इज़ असिस्टेड बाय मुशरिफ ए मामलिक। मुशरिफ ए मामलिक क्या करेंगे? ये करेंगे आपका अकाउंटेंसी का काम, और ऐसे ही मुस्तैफ ए मामलिक होंगे, ये करेंगे आपके ऑडिटर रहेंगे मुस्तैफ, ठीक है, मुस्तौफ ए मामलिक, और ये मुशरिफ, ठीक है। ये इतना डिटेल नहीं आएगा, बस ये टर्म्स किससे रिलेटेड है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। स्टेट लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ठीक है। दीवाने अर्ज का है, ही इज एडेड बाय द अर्ज मामलिक, ठीक है। इट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। He was responsible for organization and maintenance of the royal army, and the review of the army and branding of the horses was done by Arz Mamlik. Diwan Arz in Delhi Sultanate was established by Balban. अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये कैसे मिस कर दिया पॉइंट। अंडर फिरोज शाह तुगलक वजीर्स बिकेम हेरिडिटरी। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी, अब फिरोज शाह तुगलक जब आए, उन्होंने वजीर्स की जो पोस्ट है उसको क्या बना दिया? हेरिडिटरी बना दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीवाने अर्ज में क्या हुआ था? दीवाने अर्ज इज रिलेटेड टू, पहले तो ये याद रखो कि इसका डिपार्टमेंट है मिलिट्री या फिर डिफेंस, बोल दो जो बोलना है बोलो, ठीक है, मिलिट्री या डिफेंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस ऑफ द रॉयल आर्मी, ठीक है, तो इसमें नहीं। अब ये जो ब्रांडिंग ऑफ फोर्स वगैरह भी करते थे, ये भी अरीज़ मामलिक ही करता था, अरीज़ मामलिक। दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत वाज इस्टेब्लिश बाय बालबान। अब ये बालबान जो थे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था दीवाने अर्ज, कि ऐसे कोई स्पेशलाइज मिनिस्टर होना चाहिए फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओके। मैंने तो सब कुछ सुल्तान ही कर रहा था, अभी भी अल्टीमेट डिसीजन तो वही ले रहे होंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी एक डेप्यूटी ऐसे एक दीवाने अर्ज साइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर दीवाने इंशा क्या है? पढ़ो इसको। Okay, so the Department of Correspondence and the records of the royal court was held under the charge of central minister known as दाबिर ए मामलिक, ठीक है, दाबिर ए खास एंड अमीर मुंशी। क्या काम कर रहे हैं ये? हाँ, दाबिर ए खास, अमीर मुंशी और दाबिर ए मामलिक, ये कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि रिकॉर्ड्स, यानी कि ऑफ द रॉयल कोर्ट। तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? सब यही लिखना पढ़ने का काम, और जो भी एक तरह से पोस्ट कह सकते हो कि जो भी रिकॉर्ड्स रखने हैं, सो ऑल दैट रिकॉर्ड्स वर बाय, एक तरह से ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया या डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, दैट इज़ दीवाने इंशा, ठीक है, दीवाने इंशा। एंड इट वाज अंडर द चार्ज ऑफ अ सेंट्रल मिनिस्टर नोन एज दाबिर ए मामलिक। सेंट्रल मिनिस्टर का नाम क्या था? दाबिर ए मामलिक,
Okay. He was assisted by the Dabirs or the clerks. Now, Diwan Risalat, or the Minister of Foreign Affairs, was in charge of dealing with the diplomatic correspondences and the ambassadors. He was an important officer of all the he was an important officer as all the sultans were curious to maintain diplomatic relations with Central Asian powers. तो दीवान रिसालत कौन है? आपके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स. ठीक है, थोड़ा सा याद रहेगा कि दीवान इंशा, दीवान रिसालत, दीवान वजारत, इनफैक्ट दीवान वजारत एंड दीवान अर्ज, ये सब किससे रिलेटेड है? बस इतना याद रहेगा. किससे रिलेटेड है ये सब? दिल्ली सल्तनत. वजारत इज़ फाइनेंस. ठीक है. अर्ज इज़ योर, क्या था अर्ज? मिलिट्री और डिफेंस. अर्ज. ठीक है. देन Insha is correspondence. Okay. And then Risalat is your foreign affairs. Risalat is foreign affairs or external affairs. ठीक है. Now other central department. दीवाने काजा करके भी कुछ था. काजा क्या है? ये जुडिशियल, जैसे भी हम काजी जुडिशियल और ये सब बोलते हैं, नॉट रिलेटेड, बट ऐसे याद रखना है तो रख सकते हो कि दीवाने काजा इज योर जुडिशियल डिपार्टमेंट हेड बाय काजी उल कुजात, एंड यूजुअली द पोस्ट ऑफ द usually the post of the chief sadr, ठीक है, and the chief qazi were combined in a single person. Okay, so qazis were appointed by various parts of the in various parts of the empire who dispensed civil laws based on Muslim personal law, यानी कि शरिया. ठीक है. फिर दीवाने बंदगान क्या है? बंदी कौन होते हैं? बंदी होते हैं स्लेव्स. तो ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स. दीवाने खैरत क्या हो गया? खैर करना किसी की चैरिटी के लिए. इट वॉज क्रिएटेड बाय फिरोज शाह तुगलक. ठीक है. फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान इज डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स एंड दीवाने खैरात इज चैरिटी डिपार्टमेंट. ठीक है. It was created by Firoz Shah Tughlaq. Please remember this. Firoz Shah Tughlaq ने और क्या किया था? Remember this? The wazirs became hereditary under Firoz Shah Tughlaq. दीवाने मुस्तखराज. ठीक है. मुस्तखराज is to realize arrears या बकाया जो होता है. ठीक है. was created by अलाउद्दीन खिलजी. तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मुस्तखराज ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, एक तरह से बकाया. सो दीवाने मुस्तखराज, प्लीज़ रिमेंबर इट वाज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी. कैसे याद रहेगा ये? मुस्तखराज ऐसे ही रखो. मुस्तखराज इज अलाउद्दीन खिलजी. इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स. ठीक है. दीवाने बंदगान, बंदी वाला जो था फिरोज शाह, और फिरोज शाह ने क्या हेरिडिटरी करवाए थे? द पोजीशन ऑफ दीवाने वजारत. ओके. दीवाने कोल, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है. दीवाने कोही. सो इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इनकी परवाह किसको हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक को. ठीक है. दीवाने कोल, मुस्तखराज, बंदगन, काजा क्या था? काजी जुडिशरी. ओके. बंदगन क्या था? बंदी आपके स्लेव्स. ठीक है. फिर खैर चाहना, किसी की चैरिटी करना, फिरोज शाह ने बनाया था. इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी. देन दीवाने मुस्तखरज, खर्च करने से कुछ रिलेटेड, मे बी बकाया, एरियर्स. ठीक है. अलाउद्दीन खिलजी. कोही का कुछ नहीं सोच सकती. एग्रीकल्चर याद रखो. कोही. ओके. कुछ अगर आपको दिमाग में आता है कोई ट्रिक याद करने की, प्लीज़ कमेंट. Then Diwane Kohi is by Muhammad bin Tughlaq. Okay. Moving on. Amir Dad officer who was known as Amir Dad presided over the secular court, यानी कि Mazallim, in the Sultan's absence. He was also responsible for implementing the Qazi's decision. And Muhammad bin Tughlaq founded the Diwane Siyasato, established his system of justice on a broader basis. बरीद मामलिक is head of information and intelligence department.
mm, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बरीद मामलिक, ओके। तो क्योंकि आई थिंक आया हुआ है कभी बरीद मामलिक, ऐसा लग रहा है बारिद। सो बारिद इज़ what he was the head of information and intelligence department, ठीक है। बारिद is your spy, okay, he is the head of intelligence or information department. Then Amir Dad, an officer who is known as Amir Dad, presided over the secular court in the sultan's absence, ठीक है। जब सुल्तान नहीं होंगे तो जो भी कोर्ट में काम करना है वो ये करेंगे, और जो भी इनको इम्प्लीमेंट, जो भी काजी ने डिसीजन लिया वो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ही फाउंडेड दीवान सियासतो, इस्टेब्लिश हिज सिस्टम ऑफ जस्टिस ऑन अ ब्रॉडर बेसिस। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्चुअली बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए थे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, दीवाने कोही क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो इन्होंने बनाया। अब इन्होंने क्या बनाया, दीवाने सियासतो, सो दीवाने सियासतो इन्होंने क्या सोच के बनाया कि टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ जस्टिस ऑन अ ब्रॉडर बेसिस। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं बारिद मामलिक, ही वॉज द हेड ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो बारिद याद रखना, बारिद क्या है, हेड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस है। अब वकील दर इज इन चार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, ठीक है। फिर अमीर ए बरबक, ही वॉज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द रॉयल कोर्ट, बरबक, ठीक है। हाजिब विल कीप एन आई ऑन ऑल द विजिटर्स ऑफ द कोर्ट एंड प्रेजेंटेड देम बिफोर द सॉवरेन अकॉर्डिंग टू द कोर्ट एटिकेट। हाजिब मजलिस क्या करेंगे, आमिर मजलिस ऑर्गेनाइज द मीटिंग्स ऑफ रॉयल असेंबली एंड स्पेशल सेलिब्रेशन। सरे जंदर वॉज द ऑफिसर ऑफ द पर्सनल बॉडी गार्ड्स। अब इतना सब कुछ याद नहीं हो सकता, ऑल यू शुड डू आई थिंक इन माई व्यू इज़ दैट जस्ट नो द नेम्स, बारिद मामलिक, आमिर दाद, ठीक है, आमिर हाजिब, ये कुछ भी रिलेटेड टू अगर आएगा तो ये अपना दिल्ली सल्तनत है, नॉट योर मुगलक्स, what is wrong with me, not your मुगल्स। एंड ऑल्सो what may be asked is, जैसे ये कुछ याद कर लो, जैसे कि ये बारिद मामलिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखो कि स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन का ये, ठीक है। फिर ये सियासत वाला इसलिए याद रखो क्योंकि किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऐसे इससे पहले हमने वो जो कोही वाला पढ़ा था वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो ये दो याद रखो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कोही बनाया और सियासत वाला बनाया कुछ, ठीक है। कोई वॉज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और सियासत जो था फालतू का जस्टिस वस्टिस देने के लिए, ठीक है। बाबिर मामले क्या था, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। वकील दर हमने पढ़ लिया, रॉयल हाउस होल्ड के लिए था। अमीर बरबक हमने पढ़ा था पर याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ रॉयल कोर्ट। फिर हाजिब भी क्या याद रहेगा, हाजिब क्या, आंखों को वही दादी माँ जो खड़े होकर बालकनी में सबको देख रही होती हैं, वो थे आमिर हाजिब, who would keep an eye on all the visitors in the court and presented them before the sovereign court according to the court etiquette। तो ये आमिर हाजिब है। फिर आमिर मजलिस कौन है, ये भाई मीटिंग्स ऑफ रॉयल असेंबली एंड स्पेशल सेलिब्रेशंस। तो मजलिस मतलब सेलिब्रेट करवाएंगे सब कुछ, तो ये वो है। फिर सरे जंदर थोड़ा सा पर्सनल बॉडी गार्ड्स वगैरह की बात हो रही है। जानदार है ये एक्चुअली, जानदार जो जान बचाएगा किसकी, सारे सुल्तान की। तो पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ द सुल्तान सरे जंदर, तो ये भी शायद याद रह जाए, जानदार करके याद रख लो इसको कि जो जान बचाए, जानदार, ठीक है। और इंटेलिजेंस कौन था, इंटेलिजेंस था बारिद कौन था, इंटेलिजेंस, ये याद रखना है बस, ठीक है। और नाकिबुल नुकाबा वाज अ चीफ अशर, ठीक है। अनाउंस द सुल्तान्स ऑर्डर्स टू द सोल्जर्स एंड ऑल्सो प्रोक्लेम द सुल्तान्स प्रेजेंस इन द रॉयल cavalcade। So what does it mean? Just remember Nakibul Nukaba, ठीक है। ये क्या है, ये चीफ अशर है, मतलब बात करवाने वाले और कुछ भी अनाउंस करना है उस तरह से, तो नाकिब एक तरह से अनाउंसमेंट कराने वाले। तो अनाउंस द सुल्तान्स ऑर्डर्स टू द सोल्जर्स, ठीक है। क्या नाम है, नाकिब उल नुकाबा, ओके। आई गेस वी कैन मूव ऑन। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट